morning, students. Now, today we will continue the chapter number 11, the Constitution of India. Now, today we will discuss about preamble, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, for objectives of the Indian Constitution, justice, liberty, equality, fraternity. And now we will discuss about the first point, the preamble. Preamble means introduction, beginning. The Constitution of India has a preamble. Preamble means beginning. Before it, the term preamble means an introduction to a legal document. भारत के संविधान के सामने एक प्रस्तावना है. प्रस्तावना शब्द का अर्थ है कानूनी दस्तावेज का परिचय. The preamble to the Constitution act as a preface. Preface mean introduction, beginning, start. The lays down the fundamental values. The preamble is considered. Considered mean सोचा गया. The soul of the Constitution. संविधान की प्रस्तावना एक प्रस्तावना के रूप में काम करती है, एक एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में काम करती है और मौलिक यानी कि जन्म सिद्ध मूल्यों को निर्धारित करती है. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, बिगनिंग को संविधान की आत्मा माना जाता है. It begins with the people of India have solemnly resolved to constitute India into a indicate that the people of India are the real source of our constitution. Solemnly मतलब सत्य निष्ठा, resolved संकल्प विचार. ये शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत का गठन करने के लिए पूरी तरह से एक संकेत के रूप में संकल्प लेते हैं कि भारत के लोग हमारे संविधान के वास्तविक स्रोत हैं. The preamble indicates that India is a sovereign, mean शासक, socialist, समाजवादी, secular, धर्मनिरपेक्ष, democratic, लोकतंत्र, republic, गणतंत्र, and its ideal or objectives are justice, liberty, equality, and fraternity. Fraternity means भाईचारा. The preamble is an inseparable part of the Constitution. प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, preamble ये संकेत करती है कि भारत एक संप्रभुत्व यानी कि यहाँ पर शासक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य है यानी कि लोगों का राज है. इसके आदर्श या उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यहाँ पर सब कुछ है. अगर हम preamble की बात करें, preamble प्रस्तावना संविधान का एक अलग हिस्सा है. And now we will discuss about the sovereign. Sovereign means शासक, राज, संप्रभुता. A sovereign state is one which is both internally and externally free from external interference. संप्रभुत्व राज्य वह है जो अंदरूनी और बाहरी रूप से बिल्कुल हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस से मुक्त हो. The expression internally free means that the country is free to formulate its own internal policies and laws.
अंदरूनी रूप से मुक्त का मतलब अर्थ है कि देश में अपनी आंतरिक नीतियों और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। The expression externally free means the country can itself frame its foreign policy without being dominated. Dominated means राज करना, rule by any external power. बाहरी रूप से मुक्ति का अर्थ है कि देश खुद कर सकता है किसी बाहरी शक्ति द्वारा दान किए बिना विदेश नीतियां बनाए। It means that India has a free government which is elected by the people and it's make law from the people. इसका मतलब भारत में एक स्वतंत्र सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और ये लोगों के लिए कानून बनाती है। And now we will discuss about the socialist. Socialist यानी कि समाजवादी। Socialist implies inform social and economic equality. The word was added by the 42nd Amendment. समाजवादी का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता। The word was added by 42nd Amendment Act of 1976. इस शब्द को 42nd अमेंडमेंट सुधार बिल द्वारा जोड़ा गया था। मतलब कि इस बिल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 1976 के अधिनियम यानी कि कानून के द्वारा जोड़ा गया था। The government aims at bringing about fair distribution of wealth to reduce the gap between the rich and the poor. सरकार का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए पैसे का वितरण करना है। The government works for the welfare of the people. सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है। And now we will discuss about the secular. Secular mean धर्मनिरपेक्ष. This term was added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976. Following are the features of the Indian secularism. Secularism mean धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को 1976 के 42वें अधिनियम एक्ट द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। Second, the citizens are free to follow any religion according to their choice. जितने भी नागरिक हैं, इंडियन नागरिक हैं, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। Third, the government will not provide any fund for the construction of any religious structure. सरकार किसी भी धर्म या ढांचे के निर्माण के लिए कोई फंड नहीं देगी। The government will not participate in any religious festival of any religious community of the country. India is a secular state as there is no state religion and all religion are free to coexist. Coexist means stick together, एक साथ होना in a peaceful manner. मतलब सरकार देश के किसी भी धार्मिक समुदाय के किसी भी धार्मिक उत्सव में भाग नहीं लेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्म एक समान है क्योंकि कोई राज्य धर्म नहीं है। सभी धर्म शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं।
And now we will discuss about the democratic. Democratic mean loktantra. Democratic government is a government of the people, by the people, for the people. डेमोक्रेटिक मीन लोकतंत्र, सरकार लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है. In India, the people participate in government formation at all the level, union, state and local level by a system of universal adult franchise. भारत के लोग सभी स्तरों पर सरकार के गठन में भाग लेते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है. ठीक है, लोगों के वोटों के द्वारा ही उनको चुना जाता है. Every citizen who has attained the age of 18 years and is of a sound mind shall be eligible to cast a vote. प्रत्येक नागरिक जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली है, वह दिमागी रूप से स्वस्थ है, वोट डालने का पात्र है, वोट डालने का उसको अधिकार होगा. Election will be conducted in a free and fair manner after 5 years. 5 साल बाद, हर 5 साल बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे. Now we will discuss about the republic. Republic mean गणतंत्र. A republic is a state with an elected head. India is a republic because the president, who is the head of the state, is elected for a period of 5 years. गणतंत्र एक ऐसा राज होता है जिसमें एक मुखिया को चुना जाता है. भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति जो राज्य का प्रमुख होता है, वह 5 साल के टाइम पीरियड के लिए उसे चुना जाता है. इट इज नॉट ए हेरिडेटरी. हेरिडेटरी होता है वंशगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पोस्ट. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 year इलेक्शन विल बी हेल्ड. ये एक वंशगत पोस्ट नहीं है. हर 5 साल पूरे हो जाने के बाद चुनाव होंगे. फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के 4 उद्देश्य. फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो. भारतीय संविधान के 4 उद्देश्य इस प्रकार हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जस्टिस. जस्टिस मीन न्याय. ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ इररिस्पेक्टिव of their background, that is caste, creed, religion, sex, etc. So, सभी भारतीय कानून की नज़र में एक समान है, चाहे उनकी बैकग्राउंड जो मर्जी हो, उनकी जाति पाति जो मर्जी, उनका मज़हब जो मर्जी हो, उनका धर्म जो मर्जी हो, वो किसी भी वर्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, सभी कानून की नज़र में एक है. इफ 2 person commit the same offense, they will be treated by the same law. अगर 2 व्यक्तियों का एक ही तरह का अपराध करते हैं तो दोनों के लिए कानून सेम होगा, एक जैसा व्यवहार करेगा. And now we will discuss about the liberty. Liberty mean आज़ादी. Liberty means personal freedom. Every Indian is given the freedom of movement, thought, speech, expression, बिलीफ. लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता. हर भारतीय को आंदोलन, विचार, भाषण, अपने एक्सप्रेशन, गेस्चर, ठीक है, विश्वास आदि प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है. इंडियंस आर गिवन द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. भारतीयों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स, मतलब मेक श्योर, सुनिश्चित करना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन समानता. All should be treated equally in the society. Every Indian citizen is
entitled mean हकदार, to enjoy equal opportunity। समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक समान अवसर के हकदार हैं। अनटचेबिलिटी मीन छूतछात हैज बीन abolished मीन समाप्त करना एंड एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। छूतछात जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी उसको समाप्त कर दिया गया और कानून की नज़र में सभी एक समान है। And now we will discuss about the fraternity mean भाईचारा। The term fraternity mean universal brotherhood of mankind। Fraternity mean मानव जाति में सर्वव्यापी भाईचारा है। India is a land where people of various castes, languages, religions and communities live together। भारत एक ऐसी धरती है जहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, वह अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पर। Hence to ensure, make sure the unity and integrity of the country, all Indians should have a feeling of brotherhood towards each other and they should be tolerant, patient towards each other। इसलिए देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी भारतीयों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए, उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। The Constitution of a country defines the guidelines within which the different organs of the government should function। किसी देश का संविधान उन दिशा निर्देशों को परिभाषित करता है जिनके भीतर, जिनके अंदर सरकार के विभिन्न अंगों का काम करना चाहिए। इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द विटल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट फंक्शन। सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार काम करती है।